So we are doing Galatians chapter 1 verses 11 to 24. तो आज हम गलातियों के अध्याय 1 वचन 11 से लेकर 24 तक उसका अध्ययन कर रहे हैं। So we know the background of this book that Paul was writing to the Galatians after he found that some of them were receiving the teaching of the Jewish believers. और जैसा कि हम पाते हैं कि गलातियों की जो पत्री है उसके यदि हम पीछे मुड़कर उसके चरित्र को यदि पलट कर देखें तो हम पाते हैं कि कुछ लोग जो थे वे यहूदियों की जो शिक्षा थे उनकी ओर ध्यान करने लग गए थे। Now, I just wanted to ask a few questions और मैं आप सभी से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ just so that you will so that we know the places also when we read something, like we knew about Israel, we talked about Israel. Everybody keep the mute. The sound is coming. Okay, so I'll be asking some questions. और आप अपने आप को म्यूट पर रखें और मेरे पास आप सभी के लिए 2 प्रश्न हैं। So Paul, where was Paul born? पौलुस का जन्म कहाँ पर हुआ था? Anybody can unmute and say. Tarsus. Okay. Kiran said correctly. Tarsus. So the thing is that we must know our Bible, okay? Not just read and not know about it also. As many of our young people should know the Bible very well. Older people also. So Tarsus, where is Tarsus? और जैसा कि भाई ने सही उत्तर दिया कि तरसुस में प्रेरित पौलुस का जन्म हुआ था और हम सभी अपने अपने बाइबल को बहुत अच्छी रीति से उसे जानने पाए। Any idea where is Tarsus? Is it in? I think it is somewhere you told us last time. I think somewhere close to Turkey. Yeah, you're right. और जैसा कि It is in Turkey. जैसा कि भाई ने पिछले हफ्ते It is in Turkey, okay? और जैसा कि हाँ भाई ने बताया था पिछले सप्ताह में कि टर्की देश के निकट ये जो तरसुस है वो स्थान पड़ता है। So Paul was born in Turkey, in Tarsus. और फिर पौलुस का जो जन्म है वो टर्की के पास तुर्की के पास तरसुस में हुआ था। And his parents were Jews. Can you repeat? His parents were Jews. और उसके जो माता पिता थे वे यहूदी थे। But they were Roman citizens. लेकिन वे रोम के नागरिक थे। Okay, so that is the background of Apostle Paul, and he was educated in Jerusalem under Gamaliel. और उसके विषय में हम आगे पढ़ते हैं कि उसके प्रेरित पौलुस के परिवार के चरित्र के विषय में हम पाते हैं और पढ़ते हैं और वो गमलीएल के पास में उसने शिक्षा पाई। And after he was converted, he was an apostle to the Gentiles. और जब उसका परिवर्तन हुआ वह अन्य जातियों के लिए प्रेरित बना। Peter was to the Jews, but Paul was to the Gentiles. और जो पतरस था वह यहूदियों के लिए प्रेरित था परंतु प्रेरित पौलुस जो है वह अन्य जातियों के लिए प्रेरित बना। That's why we don't see Peter going to Philippi or Galatia or all these places. Peter was in Israel only. और यही कारण है कि हम पाते हैं प्रेरित पतरस के विषय में कि पतरस जो है वह गलातियों के लोगों के पास या फिलिपियों के लोगों के पास में वह नहीं जाता परंतु वह केवल यहूदियों के भी पास जाता था क्योंकि वह उनके लिए प्रेरित था। So it shows the importance that we must do what God wants us to do, not according to what we feel like doing. और यहाँ पर हम एक बात के महत्व को पाते हैं कि एक व्यक्ति उसी काम को करने में लगा रहे जिसे परमेश्वर ने उसे करने के लिए ठहराया है, ना कि उसे जो अच्छा लगता है वह उसे करने की सोचे। So the Apostle Paul moved in many places like Macedonia, which is the present day Greece. और जैसे कि प्रेरित पतरस ने भी कई स्थानों पर इस प्रकार से लिखा है कि वो मकिदुनिया के विषय में जब लिखता है जो कि आज के वर्तमान समय का वह ग्रीस है। And then he went to Rome, which is present day Italy. और तब वह रोम की ओर चला जाता है जो कि आज का वर्तमान समय का इटली है।
Then he was in this place called Asia, which is the present day Turkey. और वहां पर वह लिखता है कि वह जब उस समय एशिया में उपस्थित है, यानी कि आज के समय का वह तुर्की है। So all these places which are right now in Europe and all, he has gone. और ये वो सारे स्थान है जहाँ पर प्रेरित गया है। Okay, just one or two things more that the place called Philippi, Thessalonica, and Corinth is in Greece. और एक दो और स्थान है जैसे कि हम फिलिपिया, थेसलोनिकिया और कोरिन्थ, ये जो सारे स्थान पड़ते हैं ये ग्रीस में पड़ते हैं। And Ephesus, Colossae, Galatia, the 7 churches written in Revelations are all in Turkey. और जैसे इफिसुस की कलीसिया है, कुलुस्सियों की कलीसिया है और गलातिया की कलीसिया है, यह तुर्की में पड़ते हैं। I'll show you a map so the picture will be clear. मैं आप सभी को एक मानचित्र, एक नक्शा बताना चाहता हूँ जिससे आप सभी के सामने यह जो चित्र है वह साफ हो जाएगा। You can all see this. क्या आप सभी देख पा रहे हैं? Vipul, can you see? Yes, brother, I can see. So then everybody can see. Okay. So we find this Galatia, the letter to the Galatians. This is green one is Galatia. Okay. और जैसा कि आप दाहिनी ओर देख पा रहे हैं, हरे रंग से जो रंगा हुआ स्थान है ये गलेशिया है। Okay. So just a minute. So then Corinth is here. Corinth is here. This is Greece. Okay, this place which I'm putting the cursor. और यहाँ पर बीच के स्थान में आप ऊपर की ओर देखें जो पीले रंग से रंगा है, ये ग्रीस है। Corinth, Philippi, Thessalonica in Greece. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कोरिन्थ है, फिलिप है, थेसलोनिकिया, यह इस ग्रीस में पड़ता है। Rome is very famous. It is in Italy. और जो रोम है वो ज्यादा प्रसिद्ध है, जो कि इटली में है। Now the 7 churches are in Turkey. Yeah, 7 churches: Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea, Ephesus. All are in Turkey. और जो 7 जो कलीसिया है जिसके विषय में हम पढ़ते हैं वो दाहिनी ओर गलातिया के बगल में आप देखें तो वहां पर एशिया करके लिखा है, वहां पर पड़ता है। जैसे 7 कलीसिया पिरगमोन है, सरदीस है, इफिसुस है, फिलाडेल्फिया, लेओदिसिया है। And Tarsus is here. You see Tarsus here. That also in Turkey. Tarsus. और तरसुस जिसके विषय में हम पढ़ रहे हैं वो गलातिया से नीचे की ओर, आप दाहिने राइट की ओर देखें, नीचे पीले कलर के रंग में वहां तरसुस जो कि टर्की में पड़ता है। Jerusalem is here, down here. Judea. और जो यरूशलेम है वह एकदम राइट की तरफ, एकदम नीचे की तरफ आप आएंगे, जूडिया के बगल में, वहां हम पढ़ते हैं यरूशलेम के विषय में। See this man, he has traveled so much places in his lifetime. और आप देखिए इस मानचित्र को, इस चित्र को, नक्शे को, कि एक व्यक्ति उस अपने जन्म में कितनी स्थानों पर यात्रा की है। And I heard that he was, I think when he died, he was somewhere in his 60s. और उस व्यक्ति के विषय में हम पढ़ते हैं कि जब वह अपने मरने के अंतिम क्षणों में ही था, तब वह लगभग 60 वर्ष की आयु का था। Sam, am I right? भाई सैम, क्या मैं सही हूँ? I heard 65 also. Okay. So in his 60s. Okay. So this man in his 60, at the age of 65, he has gone to so many places and written so many letters, and God used him such a way that has changed the whole world. और देखिए हम इस व्यक्ति के विषय में पाते हैं, इसका चरित्र जीवन का कैसा है कि लगभग 60-65 वर्ष की आयु का यह जो व्यक्ति है, यह पूरे उस स्थानों पर यात्रा करते हुए जाता है और वह बहुत सी पत्रियों को, कलीसियाओं के नाम लिखता है। Yeah. So we'll go to now verse 11. और अब हम वचन 11 गलातियों के अध्याय 1 में जाते हैं। So the background is that he's writing to these Galatians who received his message when he preached, but then they quickly turned to the gospel, the message of works and the law. और हम देखते हैं कि यह गलातियों की पत्री प्रेरित पौलुस गलातियों के लोगों को इस कारण से लिखते हैं क्योंकि जब प्रेरित पौलुस ने उन्हें सुसमाचार का प्रचार किया
तब उन्होंने उसके सुसमाचार को ग्रहण तो किया, लेकिन बहुत ही जल्दी कम समय में वे उस समाचार से मुड़ जाते हैं और And किसी दूसरे ही बातों पर ध्यान देने लगते हैं। तो इस कारण प्रेरित पौलुस उन्हें फिर से चिताते हुए यह पत्री लिखता है। Paul said that this is not the gospel, और प्रेरित पौलुस कहता है कि यह वह सुसमाचार नहीं है, because the gospel is a good news. क्योंकि जो सुसमाचार है वह एक खुश खबर होती है। So the good news does something good for us. और जो खुश खबर होती है वह हमारे लिए कुछ अच्छा करता है। Religion is not good news. और जो धर्म और उसके सिद्धांत होते हैं वह कोई खुशखबरी नहीं है। Religion does not make us happy. सॉरी पता कहना कहते। Religion does not make us fulfilled. और जो धर्म होता है, धर्म सिद्धांत, वह हमें कभी भी खुश नहीं कर सकता। So, but Paul preached the gospel of God to them. लेकिन प्रेरित पौलुस ने परमेश्वर के सुसमाचार को उनके बीच में प्रचार किया। And then so in verse 11 he said, I would have you know, brethren, that the gospel which was preached by me is not according to man. और तब वो कहता है कि जो सुसमाचार प्रचार किया गया वह मनुष्य की ओर से नहीं था, परंतु परमेश्वर की ओर से था। He tried to assure them that the message that he preached is not from man, is not according to what man preaches, but it is from God. और प्रेरित पौलुस यहाँ पर जोर देते हुए इस बात को महत्वपूर्ण से बताना चाहते थे कि जो सुसमाचार जिसका वह प्रचार कर रहा है वह किसी मनुष्य का बनाया हुआ या बताया हुआ सुसमाचार नहीं है। Then verse 12 says, For I neither received it, again he's saying, I neither received it from man, nor was taught it, but I received it through a revelation of Jesus Christ. और वह आगे अगले वचन में कहता है कि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा, न मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाश से मिला। So the apostle Paul was called to the ministry almost at his conversion. तो हम पाते हैं प्रेरित पौलुस के जीवन में कि उसे एक ऐसी सेवा के लिए बुलाया गया कि वह उस समय से था लगभग जब उसका जीवन परिवर्तन हुआ था। Very rarely people are called at the conversion itself. अब बहुत से कम ऐसे लोग होते हैं जब उनका जीवन परिवर्तन होता है, जब तब उस समय से वो सेवा में आते हैं। But God has some chosen vessels where He pre-plans, that they can do some great work, and He chooses them. So Paul was one of them. लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर ऐसे कुछ गिने चुने लोगों का इस्तेमाल करता है, उनका उपयोग करता है। ऐसे बहुत ही थोड़े से लोग होते हैं जिसमें से प्रेरित पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था। So the normal servants of God, servants of Christ, are instructed by others. आमतौर पर जो परमेश्वर के दास या सेवक जो कहलाते जो सेवक होते हैं वे किसी और के द्वारा उनका संचालन होता है, उन्हें बताया जाता है। And they are also ordained by other people. और उनकी नियुक्ति दूसरों के द्वारा की जाती है। But for Paul it was different. No Peter or James went and ordained Paul. लेकिन हम प्रेरित पौलुस के विषय में पढ़ते हैं, पाते हैं कि उसकी नियुक्ति किसी मनुष्य ने या जैसे प्रेरित पतरस या प्रेरित यूहन्ना या याकूब ने जाकर नहीं की। So the direct calling from Christ himself. उसकी जो बुलाहट थी वह सीधे मसीह के द्वारा हुई। And then he didn't get any teaching from Peter, Paul, and Peter, James, and the other apostles. और जो बाकी के जो प्रेरित है जैसे प्रेरित पतरस यूहन्ना, उनके द्वारा उसने किसी प्रचार को नहीं पाया। Only after 3-4 years he saw Peter and James. लगभग 3 से 4 वर्ष के समय बीतने के बाद ही उसने प्रेरित पतरस और यूहन्ना को देखा। But he got a revelation from God himself about the gospel. लेकिन उसे एक प्रकाशन मिला, परमेश्वर की ओर से प्रकटीकरण हुआ यीशु मसीह के सुसमाचार के विषय में। Brothers and sisters, I want to talk today about one great aspect in our Christian life. भाई और बहनों, मैं आज आप सभी के बीच में एक हमारे मसीह जीवन से संबंधित एक महत्वपूर्ण बात के विषय के बारे में बात करना चाहता हूँ। That is called revelation. और जो कि है प्रकटीकरण या प्रकाशन मिलना। What is revelation? और प्रकाशन मिलना इसका अर्थ क्या होता है? Revelation is when God reveals something to us. और प्रकाशन इसका अर्थ ये होता है कि जब ऐसी कोई बात जिसे परमेश्वर हम पर प्रकट करता है।
And in the Bible, all of us believers are called to receive revelation from God. हम सभी विश्वासी होने के नाते परमेश्वर को ग्रहण करने के रूप में बुलाए गए हैं। We are not called to get revelation and for something other than the Bible. और हमें बाइबल को छोड़कर किसी अन्य बात के प्रकटीकरण या प्रकाशन के लिए नहीं बुलाया गया। God wants to give us revelation of the Bible, word of God. परमेश्वर जो है वह हमें उसके वचन यानी कि बाइबल से प्रकाशन देना चाहता है। See, brothers and sisters, it's a good thing that when we see right now we are hearing the word of God in the meeting, we are reading the Bible, and we get an understanding, and whatever we know is basically what is known by what is taught by the brothers and sisters, brothers in Christ. जैसा कि भाई बहनों, अब तक हम जो परमेश्वर के वचन को सीखते हुए आए हैं और जिसके विषय में हम पढ़ते हैं और जितना हमें उसका परमेश्वर के वचन का ज्ञान है, वह हम अन्य भाइयों और बहनों के द्वारा जो मसीह में हमारे संगी भाई उनके द्वारा हम सीखते हुए पाते हैं। That's a very good thing. We all need that. और यह जो कि बहुत ही अच्छी बात है और हमें इसकी आवश्यकता भी है। Much of our Christian life is dependent on what we receive from our brothers in the church, brothers, sisters, all of us. What we receive, that is the one which helps us. और हमारा जो मसीह जीवन है, विश्वासी होने के नाते, वह अधिकाई रूप से जो हमारे मसीह में भाई और बहन होते हैं, उनके द्वारा हम जो परमेश्वर के वचन को जानते और सीखते हैं, उस पर आधारित होता है। But if we are still more hungry and thirsty for God, and we are humble, then God can give us a revelation also. लेकिन फिर भी इसके बावजूद यदि हम में और भूख और प्यास है परमेश्वर उसके वचन को लेकर, तो परमेश्वर हमारी इस भूख प्यास के अनुसार हमें और अधिक उसके विषय में उसके वचन को लेकर प्रकाशन दे सकता है। It is just an understanding of the scripture, a new understanding that we get, which is going to help our life, our faith, and our life. और यह जो प्रकाशन होता है, प्रकटीकरण जो हम पर परमेश्वर उसके वचन के द्वारा करता है, वह उसके वचन को लेकर, वचन से संबंधित एक नई समझ होती है जो परमेश्वर हमें देता है और सिखाता है, जो कि हमारे विश्वासी मसीह जीवन को लाभदायक होता है, हमारे विश्वास को बढ़ाता है और हमें परमेश्वर में चलने में सहायता करता है। See, the Apostle Paul, he did not see the last supper, the last supper, but he says in 1 Corinthians 11:23, I received from the Lord about the Lord's table. He gives a full teaching which we are all using. और जैसा कि हम पाते हैं प्रभु की मेज के पास आने के विषय में जब हम वचन में पढ़ते हैं, वचन में हम उसके विषय में पढ़ते हैं, लेकिन प्रेरित पौलुस जो है 1 कुरिन्थियों 11 के वचन 23 में कहते हैं कि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और उसे यह प्रकाशन इस विषय में प्रभु की मेज से संबंधित यह जो प्रकाशन मिला, जिसका आज हम सभी मिलकर अनुसरण करते हैं, उसका पालन भी करते हैं। Did you read it, brother? 11, 12, 23? 1 Corinthians 11:23. Yes, brother. और हम एक बार पलट कर देखते हैं 1 कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 23, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची, मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। Yeah. कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़ाया गया रोटी ली। Okay. So then in 1 Corinthians 2:10 it says God revealed through the Spirit. और उसके बाद में 1 कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 10 में प्रेरित पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। So God reveals through the Spirit to us some things, which makes us understand things more, and it is God teaching us. It's not just like what we are receiving from other people. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं भाई और बहनों की परमेश्वर जो है वह उसके आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर उसकी रहस्यमय बातों को, उसके भेद की बातों को हम पे प्रकट करता है, न केवल जो भाई या बहन है जिनके द्वारा हम किसी प्रकाशन की बातों को सुनते हुए पाते हैं, समझते हैं। I stress that it is very important that we get from one another. और जैसा कि मैंने जोर देते हुए इस बात पर कहा कि हम जैसे कि एक दूसरे से पाते हैं, But I'm saying that there is a thing called revelation that we also must seek the Lord for. लेकिन इसके अलावा एक और बात जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जिसे हम खोजें कि हम इस विषय को लेकर, इन बातों को लेकर परमेश्वर से प्रकाशन भी पाएं। We know that in 2 Corinthians 12, Paul says that I went to the third heaven, and so many things were given to me, so much revelation was given to me. और जैसा कि हम 2 कुरिन्थियों के अध्याय 12 में पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रेरित पौलुस बताते हैं उन्होंने तीसरे स्वर्ग तक यात्रा की थी और वो
तीसरे वक्त गया और काफी सारी बातों को उन्होंने वहां पर देखा, काफी सारी वस्तुओं को उन्होंने वहां पर देखा, उनसे काफी सारी बातों का प्रकाशन उन्हें मिला। And then in 2 Corinthians 12:7 it says, 2 Corinthians 12:7 it says that because of this, we'll read this, 2 Corinthians 12:7. और हम आइए उस वचन को पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 7। It says, and because of the surpassing, 2 Corinthians 12:7, no? And because of the surpassing greatness of the revelations, for this reason, to keep me from exalting myself, there was given a thorn in the flesh, a messenger of Satan to buffet me, to keep me from exalting myself. और 2 कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 7 में हम पढ़ते हैं, इसलिए कि मैं प्रकाशों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत की मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। So the Apostle Paul received so much revelations that in order for him not to become proud, God gave him one thorn. We do not know what that thorn is. और यहाँ पर प्रेरित पौलुस बताते हैं कि उन्हें परमेश्वर की ओर से बहुत सी बातों का प्रकाशन मिला है, तो वो कहते हैं कि वह इन प्रकाशन की बातों से कहीं घमंडी ना बन जाए, वो घमंड ना करने लगे, इसलिए प्रभु ने अनुमति दी है उनके शरीर में कांटा चुभाने की, जिसके विषय में हम नहीं जानते। So God will do that. When God gives revelation, He will also give us something to keep us humble. और यह प्रभु कार्य करता है कि यदि वह हमें किसी बात का प्रकाशन हमें देते हैं, तो उसके साथ में हमें ऐसा भी करते हैं कि हम नम्र बने रहें। But we see in Matthew chapter 11 verse 25 how who gets revelation. और हम लेकिन इसके संबंध में मत्ती के अध्याय 11 वचन 25 में पढ़ते हैं कि कौन है वे जिन्हें प्रकाशन मिलता है। So that's a very very interesting thing that who gets revelation is, it says in 25, at that time Jesus answered and said, I praise thee, O Father, Lord of heaven and earth, that thou didst hide these things from the wise and intelligent and didst reveal them to babes. और यह जानना दिलचस्प की बात है कि किन्हें प्रकाशन परमेश्वर देते हैं। मत्ती के अध्याय 11 वचन 25 में हम पढ़ते हैं, उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। So brothers and sisters, it doesn't depend on our education to get revelation. और भाइयों बहनों, यह प्रकाशन मिलना या प्रकाशन पाना जो है वह इस बात पर आधारित नहीं है, निर्भर नहीं करता कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। In fact, Jesus says, you have hidden it from the wise and intelligent, you have hidden it, but you have revealed it to the babes. बल्कि यहाँ पर यह परमेश्वर का वचन जो कहता है कि तूने ज्ञानी और समझदारों से इस बात को छिपा रखा, परंतु बालकों पर प्रकट किया है। A babe is one who is helpless and says, Lord, I just need you. और यहाँ पर जो बालक होता है, जो बच्चा होता है, वह पूरी तरह से निस्सहाय होता है और वह कहता है कि केवल एक ही बात को कहता है कि प्रभु मुझे केवल तेरी ही आवश्यकता है। A babe is not one who says, I know everything, I don't need others, I can do all things by myself. और जो बालक होता है वह ऐसा नहीं कहता कि मैं मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब कुछ पता है, वह ऐसे नहीं कहता। So when we have an attitude like a babe, we are helpless in our walk with the Lord. Okay, we are helpless in our walk with the Lord. We may be capable of so many other things to do in this world, but when we have a helpless attitude, we say, Lord, I do not know. Jesus, I do not know you. I want to know you more. लेकिन हमारा भाव इस प्रकार से हो कि प्रभु मैं सचमुच कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं पता है, परंतु मैं निस्सहाय रूप से तुझी पर निर्भर करता हूँ सारी बातों के लिए। भले ही हम संसार में रहते हुए संसार की कई सारी बातों को करने में अच्छा करने में क्यों ना अच्छा करता हूँ, फिर भी हम प्रभु के सम्मुख आके बालक के समान कहें कि प्रभु फिर भी निस्सहाय रूप से मुझे तेरी ही आवश्यकता है। And then God gives us revelation. और तब परमेश्वर हमें प्रकाशन देते हैं। One great example is about Nathaniel and the Pharisees. और एक अद्भुत उदाहरण हमारे सम्मुख है नतनएल और जो फरीसी है उनका। I don't know whether you all know, but it's very interesting to see that Nathaniel, most of the disciples of Jesus knew the word of God. और मुझे नहीं पता कि आप में से कितने उस घटना को जानते हैं, लेकिन जो फरीसी थे और जो वो वे सभी जो है परमेश्वर के वचन को बहुत ही गहराई से जानते थे।
So Nathaniel knew the word of God very well. He was reading something, so he must have been reading the word of God. और नतनेल जो था वो परमेश्वर के वचन को जानता था और वह जो है लगभग परमेश्वर के वचन को ही पढ़ रहा था. So we read about Nathaniel. We're not going to refer the scripture, but we know, just for your interest, Nathaniel is mentioned in John chapter 1. और हम वचन में वहां पर पलटकर ज्यादा समय नहीं लेंगे, परंतु हम नतनेल के विषय में एक बात पढ़ते हैं कि उसके विषय में दिलचस्प की बात लिखी गई है यूहन्ना के पहले अध्याय में. So when Philip said, "We have found the Messiah, Jesus of Nazareth," और जब फिलिपुस ने आकर नतनेल से कहा कि हमें वह मसीहा जो कहलाता है, जो कि यीशु मसीह है, वो हमें मिल गया है, वह नासरत से आया है. so Nathaniel, knowing the scriptures, he says, "There's nothing written that the Messiah will come from Nazareth." और नतनेल जो कि परमेश्वर के वचन को बहुत ही गहराई से और अच्छे रीति से जानता था, उसने उससे कहा कि मैं जानता हूँ, जहां तक मुझे पता है, नासरत से कोई भी अच्छी बात नहीं निकल सकती. Nothing good can come from Nazareth, he says. वह कहता है कि नासरत से कोई अच्छी चीज नहीं आ सकती. Or can anything good come from there? That's what he said. तो वह So, कहता है कि क्या कोई अच्छी चीज भी निकल सकती है नासरत से. but then when Jesus spoke and said, "I saw you under this tree and you're a man without guile," then he suddenly got a revelation that this is the Messiah. लेकिन जब हम पाते हैं कि जब यीशु मसीह नतनेल यीशु मसीह से आकर मिलता है और यीशु मसीह उससे बताते हैं कि तू यहाँ आने से पहले तू पेड़ के नीचे बैठा था और विचार कर रहा था, और उसके विषय में यीशु मसीह बताते हैं कि यह वह व्यक्ति है जिसमें कोई भी कपट नहीं है. तब इन बातों को सुनने पश्चात उसे एक प्रकाशन मिलता है यीशु मसीह की ओर से, और वह ग्रहण करता है कि यीशु ही मसीह है. From the words of what Jesus spoke, suddenly he got a, even though the scriptures were in his mind, he got a revelation that this is the Messiah. There's nobody else can talk like this. और हम पढ़ते हैं नतनेल के विषय में कि वहां पर उसे परमेश्वर के वचन का बहुत ही अच्छी रीति से ज्ञान था, लेकिन फिर भी यीशु मसीह से बात करने दौरान वह उन बातों को सुन रहा था जो यीशु मसीह ने उससे कही, और वहां पर उसे यीशु की बातें सुनते दौरान उसे प्रकाशन मिल गया यीशु मसीह का, और वह वहां पर कहता है कि यही वह मसीहा है. So Nathaniel got revelation. और वहां पर हम देखते हैं नतनेल को प्रकाशन मिला. Peter got revelation that when Jesus said, "Who do you say I am?" He said, "You're the Son of God." He said, "Flesh and blood has not told you this, but God has revealed it to you." और हम देखते हैं पतरस को भी यीशु मसीह का प्रकाशन मिला, क्योंकि यीशु मसीह जब चेलों से पूछते हैं कि तुम मेरे विषय में क्या कहते हो, मैं कौन हूँ, तब वहां पर पतरस कहता है कि तू परमेश्वर का पुत्र मसीहा है. यीशु मसीह वहां पर बताते हैं कि यह बात तुझ पर मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने प्रकट की. Now the Pharisees also knew the scriptures very well. और हम देखते हैं फरीसियों के विषय में, जिन्हें परमेश्वर का वचन अच्छी रीति से गहराई से पता था, They were teachers of the law. और वे वचन के सिखाने वाले भी थे, शिक्षक थे. And so when Jesus did some miracle and all that, they said, and people said, "This must be the Messiah." They said, "No, he's from Nazareth. There cannot be a prophet from Nazareth." लेकिन हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह चमत्कार आश्चर्य कर्म को दिखाते, तो लोग कहते कि हाँ, यह मसीह है, परंतु जो फरीसी थे वे कहते थे कि नहीं, ये फरीसी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो नासरी है. All of us should read this account in John chapter 7. और हम सभी इसके संबंध में यूहन्ना के अध्याय 7 से हम पढ़े. The very same question with Nathaniel thought, the Pharisees also said, no, nobody can come from Nazareth. The Messiah does not come from Nazareth, but he comes from Bethlehem. और हम पढ़ते हैं जब वही प्रश्न, वही बात जो नतनेल कहता है, वही बात फरीसी यहाँ पर भी कहते हैं. वह कहते हैं कि नासरत से कोई भी मसीहा नहीं प्रकट होने का, क्योंकि वह जो मसीहा आने वाला है वो बैतलहम से आएगा. They were not babes. They were rich in their knowledge and they missed the Messiah. और ये जो लोग थे, यह अपनी समझ में बालक नहीं थे, परंतु अपनी समझ में ज्ञानी बन चुके थे, और यही कारण है कि उन्होंने मसीह को नहीं पाया. Even now, even we, if we think that we are knowledgeable in scriptures, I know everything and I cannot make a mistake, then we can miss some things. और ये हमें भी लागू होता है कि यदि हम अपने विषय में इस प्रकार से सोचते हैं कि हाँ, मुझे सब कुछ पता है, मुझे किसी बात की आवश्यकता नहीं, मैं सब कुछ जानता हूँ, तो हम भी मसीह को जानने से पाने से वंचित रह सकते हैं. But if we are babes and helpless, then God can show us some things which we have never seen before.
लेकिन यदि हम मसीह के सम्मुख आते हुए अपने आप को बालक के समान बनाते हैं, नम्र होते हैं, तो प्रभु हमें ऐसी बातों का प्रकाशन देगा जिसे हमने पहले कभी नहीं जाना था। So Paul's desire for the Ephesians and for all of us is that he says that we'll read Ephesians 1:17 because how much he desires this. The Revelation Ephesians 1:17. और आइए हम सभी इफिसियों के अध्याय 1:17 से उस वचन को पढ़ते हैं और प्रेरित पौलुस के हृदय के बोझ को हम देखते हैं वहां पर, न केवल इफिसियों के लोगों लेकिन हम सभी के लिए कि हमें परमेश्वर का प्रकाशन मिले। This was his desire for the Ephesians church, and that is the desire of the Holy Spirit for us. That the God, verse 17, that is 1:17, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you a spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of Him. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं प्रेरित पौलुस के विषय में कि यह जो प्रकाशन प्रेरित पौलुस को मिला वह हम सभी के लिए भी चाहते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। So, this is the desire of the Apostle Paul, desire of God for us, that we have this aspect of revelation. और यह प्रेरित पौलुस के हृदय की इच्छा थी हम सभी के लिए कि हम सभी को परमेश्वर का जो प्रकाशन है वह हमें मिले। Revelation will not make us proud, will encourage our faith and will make us humble and make our faith so strong. और जो प्रकाशन है वह हमें घमंडी नहीं बनाएगा परंतु वह हमें बल्कि नम्र बनाएगा और हमारा जो मसीह में विश्वास है उस विश्वास को वह और प्रोत्साहित करेगा, उस विश्वास को और दृढ़ करेगा। If it makes us more Christ-like, then that is true revelation. और यदि यह जो बात है जिसका प्रकाशन हमें मिलता है यदि हमें और अधिक यीशु मसीह के स्वरूप में बनाता है तो यह प्रकाशन है। There is another thing called knowledge. एक दूसरी बात भी होती है कि ज्ञान। The Bible is a book which can give us a lot of knowledge. और बाइबल एक ऐसी किताब भी आपके लिए हो सकती है जहाँ से आप बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। Just like we are having physics and chemistry knowledge on that, Bible can give a lot of knowledge. जैसे कि हम जीव विज्ञान रसायन विज्ञान के विषय में कई सारी किताबों के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, बाइबल के द्वारा भी आप बहुत सा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। What I was talking about, the maps and all those things are all knowledge. जैसे कि मैंने आप सभी से उस मानचित्र उस नक्शे के विषय में बातचीत की, वह सब ज्ञान के लिए है। So, but knowledge, when we have only knowledge, the Bible says knowledge makes us proud. लेकिन यदि हमारे पास केवल एकमात्र ज्ञान ही है और बाइबल कहती है कि यदि हमारे पास केवल ज्ञान है तो ज्ञान जो है वो हमें घमंडी बनाता है। So, yeah, 1 Corinthians 8:1 says, knowledge makes us proud, but love is the one which encourages. जैसे कि हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 8:1 में पढ़ते हैं कि ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है परंतु प्रेम से उन्नति होती है। Verse 13 of Galatians 1:13 says, for you have heard of my former manner of life in Judaism, how I used to persecute the church of God beyond measure and try to destroy it. और हम गलातियों पहला अध्याय उसका 13वां वचन पढ़ते हैं, यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चला था तुम उसे सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नाश करता था। And verse 14 says, I was advancing in Judaism beyond many of my countrymen, being extremely zealous for my ancestral traditions. और वचन 14, और अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी अवस्था के थे यहूदी मत में बढ़ता जाता था और अपने बाप दादों के व्यवहारों में बहुत ही उत्तेजित था। So Paul was a Pharisee and a son of a Pharisee. जो प्रेरित पौलुस था वह व्यक्ति एक फरीसी था और वह एक फरीसी का बेटा भी था। Pharisees were people who were well versed in the law, and they were the people who were forward in the religious life. और फरीसी जो थे वो ऐसे प्रकार के लोग होते थे जो कि परमेश्वर के वचन को ज्ञान के रूप में अधिक जानते थे और उनके जो धार्मिक सिद्धांत के बातों में वह सबसे आगे रहते थे। So when Paul heard the gospel being preached, he rejected it. और इसलिए जब प्रेरित पौलुस ने सुसमाचार को सुना तब उसने तुरंत उसका अस्वीकार कर दिया। But he was zealous for the law. लेकिन वह व्यवस्था को लेकर बहुत ही उत्तेजित था। He not only rejected, but he started even persecuting the believers. और न केवल उसने परमेश्वर के उस सुसमाचार को अस्वीकार किया, साथ ही उसने कलीसिया को भी बहुत सताया।
We know what all he did, that he tried to destroy the church and the people. और हम सभी उसके विषय में पढ़ते हुए पाते हैं कि कैसे उसने कलीसिया को सताया और बहुत से लोगों को सताया और कलीसिया का नाश किया। So all the believers are afraid of him. और जितने भी विश्वासी थे वे उससे डरते थे, उसका भय खाते थे। But verse 15 and 16 says, "But when he who had set me apart even from my mother's womb called me through his grace, was pleased to reveal his son in me that I might preach him among the Gentiles, I did not immediately consult with flesh and blood." और वचन आगे गलातियों के अध्याय वचन 15-16 में हम पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया, अपने अनुग्रह से बुला लिया, और जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे तो मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो न मैंने मांस और लहू से सलाह ली। So now the Apostle Paul, after becoming a Christian, after knowing Jesus, he says, God had a plan for me even from my mother's womb. और अब हम देखते हैं प्रेरित पौलुस के विषय में, जैसे यीशु मसीह का प्रकाशन मिला हुआ, कहता है कि परमेश्वर ने मुझे मेरी माता के गर्भ ही से ठहराया। The same thing happened to Jeremiah. Jeremiah in 1:5 says, "Before I formed you in the womb, I knew you." And before Jeremiah 1:5, about Jeremiah, God says, "Before I formed you in the womb, I knew you, and before you were born, I consecrated you. I have appointed you a prophet to the nations." Before he was born. और हम पढ़ते हैं यही बात यिर्मयाह नबी के विषय में, भविष्यवक्ता के विषय में पढ़ते हैं, यिर्मयाह अध्याय 1 वचन 5 में, कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। So God has a plan for us, for all of us, even before the foundation of the world. God has got a plan for each one of us. और परमेश्वर ने हम सभी के लिए, हम में से हर एक व्यक्ति के लिए एक अद्भुत योजना बनाकर रखी है। उस समय जबकि जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने हमारे लिए योजना बनाई। I came to the Lord in 1975. और मैं प्रभु में सन 1975 में आया। But God had a plan before the foundation of the world to choose लेकिन each one of us. परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति करने से पहले ही इस विषय में योजना बनाई थी। And even as Paul was persecuting and was away from God, the true faith, God called him. Similarly, we have some family members or some people who seeming to go away. We can pray. God has got a plan. God will bring such people back and use them for His glory. We can trust that. और हम पाते हैं कि परमेश्वर ने कैसे अद्भुत रीति से हम सभी को उसके पास बुलाया है और उसके पास खींचा है। और हम पाते हैं कि हमारे जान पहचान के कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम पाते हैं कि वे परमेश्वर से दूर जाता हुआ हम पाते हैं उनके विषय में, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखे, परमेश्वर उन्हें एक न एक दिन अपने पास अन्य रीति से खींचेगा, लेकर आएगा और अपनी महिमा के निमित्त उनका इस्तेमाल करेगा। We must pray for all our children that that even if they look not to be going the right way, that God will bring them back. We can trust and we can pray for that. और जैसे कि हम अपने बच्चों के विषय में भी पाते हैं कि हम उन्हें पाते हैं कि वह परमेश्वर से दूर जा रहे हैं, ऐसा हम पाते हैं, हमें प्रतीत होता है, लेकिन हम उन्हें परमेश्वर के हाथों में सौंपे, उनके लिए नित्य प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर उन्हें अपने माध्यम के द्वारा अपने पास बुलाकर लेकर आएगा और उनका इस्तेमाल करेगा। Many children who have gone astray have come back because of the prayers of their parents, especially mothers. और हम पाते हैं कि कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो परमेश्वर से दूर जा चुके होते हैं और उनके माता पिता जो होते हैं उनकी प्रार्थना के द्वारा, विशेष करके उनकी माता जो माँ होती है बच्चे की, उनकी प्रार्थना के द्वारा वे प्रभु में फिर से लौट कर आते हैं। Prayer of mothers are very, very powerful. और जो माताएं होती हैं वे, उनकी प्रार्थना बहुत ही सामर्थ्य प्रभावशाली होती है। I think I and my brothers and sisters came to the Lord because of the prayer of my mother. मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं और मेरे भाई बहन जितने भी हैं वो मेरी माता के प्रार्थना के द्वारा ही प्रभु में आए हैं। She has said that to us. सॉरी, She said that to us. और उसने हमसे कहा No, that she used to pray for us. और कि वह हमारे लिए नित्य प्रार्थना करती थी। There was a person by the name Saint Augustine. I think his mother prayed, and the man who was so much away from God became a saint. और सेंट अगस्टिन करके एक व्यक्ति है, उनके विषय में ऐसा कहा जाता है कि उनकी
माता ने बहुत ही ज्यादा अधिक प्रार्थना किया परमेश्वर से कि वह प्रभु के पास आए और वह एक दिन न केवल प्रभु के पास आता है परंतु वह एक संत भी बन जाता है। Verse 17, nor did I go up to Jerusalem to those who were apostles before me, but I went away to Arabia and returned once more to Damascus. और हम वचन 17 में गलातियों के अध्याय में पढ़ते हैं कि न यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, पर तुरंत अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट आया। So after his conversion on the way to Damascus, he went to Arabia, and then he और was जब there उसका for some, परिवर्तन हुआ था yeah, he was there for some time. और हम पढ़ते हैं कि जब प्रेरित पौलुस का परिवर्तन हुआ था दमिश्क को जाने के मार्ग में, तो वो कहता है कि जैसे ही परिवर्तन हुआ मैं तुरंत अरब को चला गया। There he must have got some revelation from God. और वहां पर भी उसे परमेश्वर की ओर से कुछ प्रकाशन मिला। Yeah. And then we'll read verse 18 to 24. We'll read, brother. और वचन 18 से लेकर हम 24 तक पढ़ेंगे। 3 years later, I went up to Jerusalem to become acquainted with Cephas and stayed with him 15 days, but I did not see any of the apostles except James, the Lord's brother. So here we see that only after 3 years he met Peter and then James. और हम वचन 18 में पढ़ते हैं कि फिर 3 बरस के बाद मैं कैफा से भेंट करने के लिए यरूशलेम को गया और उसके पास 15 दिन तक रहा। वचन 19, परंतु प्रभु के भाई याकूब को छोड़ और प्रेरितों में से किसी से न मिला। Verse 20 says, now in what I'm writing to you, I assure you before God I'm not lying. Then I went to the regions of Syria and Cilicia. I was still unknown in sight to the churches of Judea which was in Christ, but only they kept hearing, he who once persecuted us now is preaching the faith which he once tried to destroy, and they were glorifying God because of me. और वचन 20 से आगे की ओर हम पढ़ते हैं, जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ देखो परमेश्वर को उपस्थित जानकर कहता हूँ कि वे झूठी नहीं। इसके बाद मैं सूरिया और किलिकिया के देशों में आया, परंतु यहूदिया की कलीसियाओं ने जो मसीह में थी मेरा मुख तो कभी नहीं देखा था, परंतु यही सुना करते थे कि जो हमें पहले सताता था वह अब उसी धर्म का सुसमाचार सुनाता है जिसे पहले नाश करता था, और मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा करती थी। So then about Paul was still not very well known as he was later, but they only kept saying that they knew that he was a persecutor, and so they were saying that the one who was persecuting is now preaching the gospel. और हम पाते हैं प्रेरित पौलुस के विषय में कि कई सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने प्रेरित पौलुस का मुख नहीं देखा था, परंतु केवल उसकी पत्रियां उन्होंने पढ़ी थी और पत्रियों के द्वारा उसकी बातों को उन्होंने सुना था, और इतना ही उसके विषय में जानते थे कि वह व्यक्ति जो पहले कलीसिया को सताता और नाश करता था वह अब उसी सुसमाचार का प्रचार करता है। They were happy and they were glorifying God. और वे सब खुश थे, आनंदित थे और वे परमेश्वर की महिमा करते थे। That ends chapter 1. और यहाँ पर जो पहला अध्याय वो समाप्त होता है। Yeah, I just want to share one thing here. We read in chapter 1, verse 19, I saw no other apostle, that is apart from Peter, except James, the Lord's brother. मैं आप सभी के बीच में एक बात रखना चाहता हूँ। जैसे हम गलातियों का अध्याय वचन 19 में पढ़ते हैं कि वहां पर वह प्रेरित पतरस और प्रेरित याकूब को छोड़ा किसी से नहीं मिलता। See, this James is not the disciple of Jesus, who is not that James. और यहाँ पर हम जिस याकूब के विषय में पढ़ रहे हैं भाई और बहनों, यह वह याकूब नहीं है जो यीशु मसीह का प्रेरित था। Because that James, actually we read in Acts that he was beheaded. क्योंकि उस याकूब के विषय में हम पढ़ते हैं प्रेरितों के अध्याय में, प्रेरितों के काम में, जो यीशु का चेला था, शिष्य था, कि उसका जो सर है वह धड़ से अलग कर दिया गया था, उसका गला काट दिया गया था। This James is actually Lord Jesus Christ's physical brother. और यहाँ पर हम जो याकूब के विषय में पढ़ रहे हैं, यह जो हमारे प्रभु यीशु मसीह का शारीरिक रूप में सगा भाई था। If you read Mark chapter 6, we can see there that Jesus had 4 brothers and at least 2 sisters, because it's written there, Mark 6:3, his brothers were James, Joseph, Judas, Simeon, and
is written sisters. That means it can be 2 or 3. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं, यदि आप मरकुस का अध्याय 6 वचन 3 निकाले, वहां पर हम यीशु मसीह के विषय में पढ़ते हैं कि वह मरियम का पुत्र था, और याकूब, योसेस और यहूदा और शमौन उनके भाई थे, और उनकी बहनें भी थी, और लगभग ये बहनें भी 2 या 3 बहनें हो सकती थी। Out of these, let's say 6 or 7 brothers and sisters, we know that 2 of them, after Jesus' death and resurrection, got converted. और हम पढ़ते हैं यीशु मसीह के इन परिवार के विषय में कि यहाँ पर लगभग 6 से 7 भाई बहन जो मिलकर थे, उनमें से केवल 2 ही ऐसे व्यक्ति हैं जो यीशु मसीह के मृत्यु के बाद, जब यीशु मसीह क्रूसित हुए, उनके मृत्यु के बाद वे प्रभु में आते हैं। They are James and Jude. और वे 2 व्यक्ति का नाम जो है वो याकूब और यहूदा हैं। See, James actually became one of the elders in Jerusalem church. और जो याकूब यहाँ पर जो है यीशु का भाई जिसके विषय में हम पढ़ते हैं, वह वास्तव में यरूशलेम में जो प्रेरितों की कलीसिया स्थापित हुई थी, उनमें से एक प्राचीन भी बना। And he is the one who wrote the book of James. और जो याकूब है, यह वह व्यक्ति है जिसने याकूब की पत्री भी लिखी है। And we know there is a book written by Jude, that is the physical brother whose name is written here in Mark chapter 6. और एक और व्यक्ति है यहूदा, जिसके विषय में हम पढ़ते हैं, जो यीशु मसीह का शारीरिक रूप से भाई था। उसने भी एक पत्री लिखी। See, in John chapter 1, we read that in him was light, and light was in him was life, and life was the light of men. और हम यूहन्ना के सुसमाचार उसके पहले अध्याय में पढ़ते हैं कि उसमें जीवन था, वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। See, we can see that it was Jesus' life that attracted these physical brothers. When Jesus was ministering, they were opposing Jesus. We read that in John chapter 7. But after his death and resurrection, because of that life, they were attracted and converted, and they became wonderful disciples of the Lord. और हम पढ़ते हैं यीशु मसीह के भाइयों के विषय में कि जब यीशु मसीह सेवा कर रहे थे, तब वे यीशु मसीह के जीवन से इतने प्रभावित नहीं थे, वे उसके विरुद्ध थे और उसका विरोध करते थे। लेकिन जब यीशु मसीह की मृत्यु होती है और वह जी उठते हैं मुर्दों में से, तब यीशु मसीह जो दोनों भाई हैं याकूब और यहूदा, उन पर यीशु मसीह का प्रकटीकरण होता है। वो बहुत अच्छे मसीह में भाई बन जाते हैं और यीशु मसीह के प्रेरित भी बनते हैं। As somebody said, there are 5 gospels: Matthew, Mark, Luke, and John, and then my life. Each one of our life. और किसी ने ऐसे कहा है कि कुल मिलाकर 5 सुसमाचार की किताबें हैं: मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना और मेरा जीवन। See, many people read no Bible; they read only one gospel. You know what is that? That is our life. और कोई भी व्यक्ति जो है वह कोई भी बाइबल को नहीं पढ़ता है, वह केवल एक ही सुसमाचार के पुस्तक को पढ़ता है, जो कि हमारा जीवन होता है। It's a very challenging thing for each one of us, that as is written of Jesus, Lord, my life should be the light of men. और जैसा कि यीशु मसीह के विषय में कहा जाता है कि वैसे ही हमारा भी जीवन हो कि प्रभु मेरा जीवन दूसरे औरों के लिए, मनुष्यों के लिए ज्योति का काम दे। It's written in verse 5, John chapter 1:5. Light shines in darkness, darkness could not overpower it. और हम यूहन्ना पहला अध्याय वचन 5 में पढ़ते हैं कि ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। Even say imagine midnight, 2 o'clock, if there is a 0-watt bulb, that is sufficient to remove darkness. और भले ही रात के क्यों ना 2 बज चुके हों, फिर भी उस घोर अंधकार भरे कमरे में यदि 0 वॉट का बल्ब भी जला दिया जाए, वह उस कमरे में अंधेरा भगाने के लिए पर्याप्त है। See, darkness, however it right, can never overpower light. और जो देखिए, जो अंधकार होता है वह भले ही कितना घोर और काला अंधकार क्यों ना हो, फिर भी वह कभी भी उजाले पर, प्रकाश पर प्रबल नहीं हो सकता। Some people say that because of the circumstance I cannot live for Jesus, but that is not really true.
कई लोग इस प्रकार से कहते हैं कि मेरे जीवन की ऐसी परिस्थिति हो चुकी है कि मैं यीशु मसीह के लिए जी नहीं पा रहा। वह सच नहीं है। If it's true light from God, it can overpower every darkness. यदि हमें परमेश्वर की ओर से वह उसका जो ज्योति जो कि उसका जीवन है, यदि वह हमें मिलता है, हम पाते हैं, तो वह पर्याप्त है अंधकार पर प्रबल होने के लिए। Let's live such a life. Let's have such a life. आइए हम इस प्रकार के जीवन को जिए। ब्रदर मैथ्यू और ब्रदर सैम ने जो शेयरिंग किया बहुत ही प्रोत्साहन भरा था। और जब मैं सुन रहा था मुझे बहुत ही अंदर से मैं एंजॉय कर रहा था कि परमेश्वर ने कितना ब्यूटीफुल गॉस्पेल जो हमें दिया है कि लोग परमेश्वर चाहता है कि हम पर प्रकट करें, जैसा हमने सुन रहा था कि, लेकिन परमेश्वर ये भी चाहते हैं कि हम 3 नंबर बने, उसी पर प्रकट करेगा परमेश्वर। तो हम कभी कभी ऐसे सोच सकते कि प्रभु मैं कितना चीजों को नहीं जानता हूँ, कितना चीजों को समझ में नहीं आता, कितना चीज, बट या मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, या मैं जितना हमारे एल्डर जानते हैं उतना मैं ये नहीं बाइबल स्टडी नहीं किया, बहुत सारी चीजें, बट हम जैसे कि मैं एक मन में सोच रहा था कि मेरे जीवन में कितना एक गुड न्यूज सभी में सुन रहा था कि परमेश्वर चाहते कि वो दीन और नम्र लोगों पर प्रकट करे, जैसे कि हमने मत्ती 11:25 में पढ़ा। परमेश्वर ने वो सब चीजों को हाइड किया जो बुद्धिमान समझ से अपने आप को ज्यादा नॉलेज समझ से ज्यादा पता है उनको, बट परमेश्वर दीन नम्र, जैसा हम देखते कि फिशरमैन पतरस पे यीशु मसीह ने प्रकट किया है कि वो बोला कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। और कितना अच्छी बात है कि परमेश्वर को जानने के लिए हमको कोई बुद्धि का जरूरत नहीं, बट परमेश्वर को जानने के लिए हमको दीन और नम्रता वो आत्मा हमको चाहिए कि प्रभु हम पे प्रकट कर। तो सिंपल है कि परमेश्वर हम पे प्रकट करेगा। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करती कि परमेश्वर हम मुझे चाहते कि हमें और भी दीन नम्र बने ताकि वो मुझ पर प्रकट करे। मैं धन्यवाद करते इस गॉस्पेल के लिए तो बाइबल शेयर किया। और एक चीज जो मैं सोच रहा था जेम्स के बारे में, मैं सोच रहा था कि ये जेम्स वही जेम्स तो नहीं है कि यीशु मसीह का भाई है। तो मैं सोच रहा था क्वेश्चन मार्क था कि, लेकिन ब्रदर सैम ने उसका उत्तर दिया। मैं इसके लिए भी धन्यवाद करता हूँ कि वो मुझे क्लियर हो गया कि ये यीशु मसीह का सगा भाई था जेम्स। तो धन्यवाद करते कि परमेश्वर ने मुझसे बात किया प्रोफेटिक वर्ड से, और एक मन में एक एक्साइटेड एक जॉयफुल दिया कि ऐसा गुड न्यूज हम यीशु मसीह को जानने के लिए कोई हमको कुछ बड़ा ये नहीं करना, हमको 3 नंबर बनना है ताकि यीशु मसीह हमारे जीवन में प्रकट हो सके। या धन्यवाद।